some people will be removed. Please rejoin, guys. Okay, chalo. Here, क्या पढ़ा था हमने इधर आरती? That shell divided into subshell, but subshell further Is divided into orbitals. into orbitals. Yes, great. Now, shortcut में अगर orbitals का definition बनाना है, तो राज, what will be the shortcut में orbital का definition? Shortcut एकदम. We know that electron won't remove in orbit; it's in orbital. So orbital is nothing but a Small region where electrons revolve. small three-dimensional region, and orbit is a two-dimensional region, right? Yes, sir. Okay, चलो. अभी further Samyak, बेटा, are you there? Yes, sir. अभी मुझे बताइए, here एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? One, बोलो. one, देखो ना, इसमें एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? two electrons, two electrons. 2 इलेक्ट्रॉन्स. Q2 2Q, एक क्या घूमता है? क्लॉकवाइज रिवॉल्व करता है, स्पिन Clockwise. करता है. दूसरा Yes, sir. क्लॉकवाइज स्पिन करता है. Anti-clockwise. और वो लोग पूरे रीजन को इतना नेगेटिव बना देते हैं कि तीसरे को अंदर आने देते नहीं है. बराबर? Yes, sir. ग्रेट. स्वाति बेटा, एक वेरी सिंपल, दैट इज Yes, sir. हियर बेटा, मुझे पूछना था कि एस ऑर्बिटल, एस, यू नो, 1s 2s 3s, एस ऑर्बिटल Yes, का sir. शेप कैसे होगा? Spherical. Spherical. It's a three-dimensional spherical region where in that spherical region Two it's called electrons. as two electron spins revolves. Very good. Here, okay. Now, guys, next, this is about what? P orbitals, guys. 2p, 3p, 4p, 5p, like that. 2p, 3p, 4p, 5p. हर एक p में, you know, 6 इलेक्ट्रॉन्स. 6 इलेक्ट्रॉन आर्सेलन जी के लिए there are 3 orbitals, right? Right, sir. Where they were, means where they have located. Sir, dumbbells पे. Yeah, they are in dumbbell shape, On the but the x-axis, dumbbell, X, y-axis, Y, and and Z axis. yes, great, beta. It's on dumbbell present on X, Y, and Z axis. Great, super, great. And each orbital having 2 electrons. अपने अपने One lobes clockwise, में, one anti-clockwise. one clockwise, one anti-clockwise spinning. Very good, guys. कितना clear है सबको? Everyone, please write yes, no, कुछ यार. yes, sir. Great, चलो. Great. Now, guys, finally, d orbital something, क्या था इसमें? हम लोग ने देखा था. Everyone look at me. This is 3 spoon, x-axis, बराबर है. फिर
this is your x axis, y axis, and this is your z axis, right? 4 causes. Yes, sir. Okay. अभी उसमें कौन सा एक्सिस निकाल दो? एक Z. z. Okay. Here z निकाल दिया मैंने. You able to see me ना everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, चलो. So ये इसमें थोड़ा क्रॉस करके दिखाऊंगा ऐसे. So you able to see 4 quadrants. Yes, sir. ये 4 Yes, quadrants sir. में 45 डिग्री पे there are Dumbbells. every quadrant में 4 lobes, मतलब 2 dumbbells डेवलप होंगे, राइट? Yes, sir. तो क्या बोला मैंने? ये 4 quadrants, can you see XY plane guys, everyone? XY plane, Yes, XY sir. plane पे 4 quadrants, 4 lobes are developed, and 2 डंबल के अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं. तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 डंबल क्यों? क्वेश्चन अराइजेस इन माइंड. तो क्यों 2? एक क्योंकि डंबल में अगर एक जगह पे रिपल्शन हो जाएगा तो दूसरी जगह पे जाएगा वो. ग्रेट. चलो बात हुई थी सुबह. वेरी गुड. So am I clear, आमशा बेटा? Yes, sir. Great. चलो. So everyone going ahead here. अभी XY प्लेन के बाद इधर क्या था? इधर ये कौन सा एक्सिस निकालो अभी श्रुति? Y. ओके, Y. y निकाला मैंने. y निकाल दिया. फिर अभी कौन सा एक्सिस है मेरे पास? X और x Z. और z. x और z की क्लियर कट नॉर्मल क्वाड्रेंट लिख रहे हैं, राइट? सो ये चारों 4 क्वाड्रेंट में 4 लॉब्स, मतलब 2 डंबल, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है गाइस, एंड दिस ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज dxz. am I right? ओके गाइस, dxz क्यों बोला? क्लियर है? Yes, sir. एंड फाइनली अभी एक कौन सा एक्सिस निकाल दो बेटा? X axis. x एक्सिस. ग्रेट. अभी अभी ये इस तरह से जो प्लेन बन रहा है, क्रॉस करके बता रहा हूँ, ठीक है? ये अभी ये डायरेक्शन में, कैन यू सी डायरेक्शन? मेरी उंगली दिख रही है? ये डायरेक्शन में लॉब्स बनेंगे सारे. 4 lobes, 2 dumbbell will be formed, guys. Am I clear? Yes, sir. And this final वाले को क्या बोलेंगे everyone? Z. Y. dyz. चलेगा? हाँ सर. Am I clear everyone? Yes, Dhruva? sir. Yes, sir. Great. चलो. So guys, this is how 3 dxy, yz और xz में I have filled 3, मतलब 2 2 2 करके 6 इलेक्ट्रॉन I have filled. अभी लास्ट के दो में गाइस व्हाट? सर X और क्या Y है? axis पे मिलेंगे. यस, वन मोर इज देयर ऑन. अभी तक हम लोग ने 45 डिग्री में बीच बीच में बना रहे थे. अभी एक्सिस पे बना है. dx² y² में एक बना हुआ है गाइस ऑर्बिटल, और दूसरा Z square. z एक्सिस पे. देखो ये फर्स्ट टाइम अभी सबको दो दो डंबल मिले थे, बट इसको नहीं मिले. किसको नहीं मिले? Z square. z² को. तो उसमें क्या होगा? रिपल्शन. रिपल्शन होगा, इसलिए वो रिंग फॉर्म करेगा. X और Y रिपल्शन होगा, इसके लिए वो रिंग फॉर्म बाहर करेगा. डंबल के बाहर निकल के ऐसे रिंग फॉर्म करेगा, राइट? और बाहर घूमेगा थोड़ी देर. अगर रिपल्शन कम हो जाएगा, रिंग में रिपल्शन बढ़ जाएगा, तो वापस वो उधर डंबल में चले जाएगा. सर ये पहली- Z एक्सिस समझ में नहीं आया. हाँ देखो, अब ये z एक्सिस पे एक ही डंबल है. z एक्सिस पे क्या है? सर मतलब ये Z एक्सिस कैसे? ये- सर ये तो X एक्सिस का दो पोजीशन है ना, ये जो भी है. नहीं, ये देखिए, ये देखिए आप, इसमें ये जो
ये जो ये कौन सा एक्सिस है, जेड है। बराबर। तो हाँ। ये ये कौन सा हुआ, ये एक्स हुआ और वाई। बराबर है। अभी जरा मैं ये कर रहा हूँ, ये वाले में देखो, ये एक मिनट, कैन यू सी द स्क्रीन ओवर देयर गाइस? इसमें दिख रहा है स्क्रीन बेटा अब्दुल्ला? तो वही जो पहले था वही है। हाँ वही वही। तो इसमें ये हाँ। जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिख रहा है ना, ये ऑर्बिटली एक्सिस एक्स और वाई दिखा है ना अभी मैंने, एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब कितने उधर डंबल है, तो उधर 2 डम्बल्स। 2 डंबल है, और इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 ही है, बराबर। एक्स एक्सिस पे रिपल्शन बढ़ गया तो कहाँ चले गए, वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे रिपल्शन बढ़ गया तो एक्स एक्सिस पे। मतलब ये लोग एक्स उधर एक्सिस। घूमते रहते हैं, एक्सिस पे एक्स और वाई। भी कौन सा एक्सिस बच गया बेटा, हाँ तो कौन जेड सा, एक्सिस समझ जेड गया एक्सिस मैं। बढ़ गया। तो अभी अभी ये जेड एक्स और वाई निकाल दो, ये जेड एक्सिस पे डंबल बनाया हुआ है ऐसे, और डंबल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। भी सब लोग को दो दो डंबल थे, 2 इलेक्ट्रॉन को, ये इसको खाली की डंबल मिला। तो इसको जब भी रिपल्शन ज्यादा, इसको जब भी रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा फॉर्म होगा, तो वो बाहर निकल के क्या करेगा, तो रिंग बनाएगा, रिंग रिंग। बनाएगा अपना रिपल्शन कम करने के लिए। रिपल्शन थोड़ा कम हो गया, अंदर वापस चले गया उधर, ऐसा है। अभी क्लियर है? अंडरस्टूड, यस सर। चलो, तो इतना हम लोग ने सुबह पढ़े भाई। ऑर्बिटल्स के बारे में जाने हम लोग ने। व्हाट इज ऑर्बिटल्स? Regions, small three-dimensional regions where electron revolves, guys. तो s orbit, orbit, s orbit के orbitals, p orbit के orbitals, 3d orbit के orbitals ऑलरेडी डेवलप फाइंड आउट हुए हैं, और कैसे शेप होता है वो सब पढ़े हमने, राइट एवरीवन गाइस? यस सर। ग्रेट। चलो, अभी ये स्लाइड में बंद कर देता हूँ और नया कुछ पढ़ भी गया। ओके गाइस, चलो लेट्स स्टार्ट। आई एम शेयरिंग माय अनदर स्क्रीन। ओके गाइस, चलो अभी इधर मुझे बताइए एवरीवन, नहीं समझा तुरंत पूछने का, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अभी सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन्स वर filled electrons were filled, guys, in a given subshell according to Aufbau rule, right?
ये हम लोग ने सीखा हुआ है पीरियोडिक टेबल में। क्या ये जो सुबह हमने पढ़े हैं हाँ बेटा, नथिंग बट व्हाट बेटा? अबाउट रूल। यस, 1s 2s 2p, क्या ये 3s 3p 3d सब शेल्स। सब शेल्स है। वेरी गुड। और ये इसका फिलिंग सीक्वेंस क्या होगा? फिलिंग सीक्वेंस पहले क्या भरेगा, ठीक है, हम लोग को पता है एस में 2 ही भरना है, पी में मैक्सिमम वी कैन फिल 6 गाइस, डी में वी कैन फिल मैक्सिमम व्हाट 10, एफ में वी कैन, ठीक है, लाइक दैट। तो सीक्वेंस भरना क्या हुआ हमें पता है, बट ये भर के हो गया, 2 भर के हो गया, फिर कहाँ जाना है, फिर क्या भरने जाना है, ऐसा। यू गॉट माई पॉइंट? अदिति, अब्दुल्ला, अमय, क्या बोला मैं? सर यू सेड कि कौन से फिल करने हैं पहले, फिर सेकंड, फर्स्ट ऑर्बिटल कौन सा फिल होगा, फिर कौन सा। यस, ओके गाइस, वेरी गुड। तो ये फिलिंग सीक्वेंस देने के लिए कौन आ रहा है? अब्दुल्ला जी, एवरीवन, कौन आ रहा है? अबाउट बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल हम लोग ने पढ़ा हुआ है, ड्राइंग कर करके। एवरीवन, क्या इधर 1s 2s 2p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 5g 6s 6p 6d 6f 6g 6h 7s 7p 7d 7f 7g 7h 7i guys, am I right? क्या बोला ओबाओ ने? पहले क्या भरेगा? फर्स्ट क्या भरेगा? 1s। जो कट हो रहा है वही भरने का। 1s के बाद क्या कट हुआ बेटा? आफ्टर 1s क्या कट हुआ? बराबर है, 2s 2s। ठीक है, अयान, भाग्यश्री, धन्यंत, एम आई क्लियर? 2s के बाद 2p3s। ग्रेट। बरोबर है गार्गी बेटा, आगे बोलो। ये 3s के बाद क्या फिल होगा? 3p 4s 3p4s। ग्रेट, वेरी गुड बेटा। सब लोग आंसर देंगे ना तो मजा आएगा। फिर 4s के बाद क्या फिल होगा बेटा? 4p5s। 3d4p5s। 3d 4p 5s, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ग्रेट। अभी नेक्स्ट 4p5p 4d5p6s। ग्रेट, 4d 5p 6s। फिर अभी 4f5p 6p 7s। 4f 5d 6p 7s, ग्रेट। और फाइनली गाइस 5f 6p 7p। ग्रेट, 5f 6d 7p। आप सबको पता है गाइस, अब्दुल्ला जी, 1s में कितना भरना है, p में, d में, f में कितना भरना है पता है ना सबको? ये भरते गए। स्टार्टिंग किससे किया भरने का? 1s 1s है। ऋषिता, कशिश, कौस्तुभ, प्लीज स्पीक अप गाइस। स्टार्टिंग किया अपन ने 1s से, फिर ऐसे बढ़ते गए इधर
7p तक कितना इलेक्ट्रॉन भर के हो गया? हाँ गाइस, कितना इलेक्ट्रॉन भर के हो गया? Sir, 180. 118 गाइस। सर ये कैसे हो 118? 18 सपोज, देखो ये 118 UUO अननॉक्टियम, अभी तो उसके नाम भी आ गए हैं। ये अननॉक्टियम का बेटा, अननॉक्टियम का 118 इलेक्ट्रॉन है ये एलिमेंट में, अननॉक्टियम में। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। हाँ बेटा, वैसे अननॉक्टियम का एटॉमिक नंबर क्या है? बोलो ना। 108. 118। तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 118. 118। अभी ये कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम लोग ने इधर लिखा शाहरुख प्रियंका, क्या था शॉर्टकट? शाहरुख प्रियंका, फिर शाहरुख डियर फ्रेंड प्रियंका। शाहरुख डियर फ्रेंड प्रियंका, फिर शाहरुख फर्स्ट डियर फ्रेंड प्रियंका। अच्छा वापिस शाहरुख डियर फ्रेंड प्रियंका, फिर शाहरुख शाहरुख फर्स्ट डियर फ्रेंड प्रियंका। शाहरुख फर्स्ट डियर फ्रेंड प्रियंका। ग्रेट। तो ये शाहरुख कौन सा नंबर का हीरो है? फर्स्ट नंबर का, राइट? याद आया? प्रियंका कौन से नंबर की हीरोइन है? सेकंड। नंबरिंग कर देने का, डायरेक्टर और ये फिल्म प्रोड्यूसर। ये एक शॉर्टकट बना है अब्दुल्ला जी, ये देखो, ये शॉर्टकट क्या फायदा करेगा आपको? ये ड्राइंग करने के बाद सीक्वेंस मिला था फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के लिए सब शेल, राइट अब्दुल्ला जी बेटा? क्या Yes, बोल रहा हूं मैं? बोलिए, ये बोलिए, अब शेल कौन सा पहले भरना है, कौन सा बाद में बनना है। वो सीक्वेंस ऐसे ड्रॉ कर करके अगर नहीं निकालना है, ठीक है? वो सीक्वेंस ऐसे बोलो, ड्रॉ सर करके नहीं निकालना ड्रॉ है। करके नहीं अगर निकालना है। ड्रॉ करके नहीं निकालना है अगर, तो ये मैंने शॉर्टकट बनाया था, एक टंग ट्विस्टर, that you will be getting guys when you see the periodic table lecture. शाहरुख प्रियंका, शाहरुख डियर फ्रेंड प्रियंका, शाहरुख डियर फ्रेंड प्रियंका, शाहरुख फर्स्ट डियर फ्रेंड प्रियंका, शाहरुख फर्स्ट डियर फ्रेंड प्रियंका। एम आई राइट अब्दुल्ला जी? यस सर। शाहरुख में 2, शाहरुख में 2, राइट? हाँ। प्रियंका में 6, शाहरुख में 2, प्रियंका में 6, शाहरुख में 2, डायरेक्टर में गिनने भी है 2 2 4 6 10 12 6 18, 18 भरा इधर तक, 2 18 2 20, नीचे लिखते हैं, हाँ 10 30। प्रियंका में 6 36, शाहरुख में 2, फिर डायरेक्टर में 10 दैट इज 48, प्रियंका में 6 दैट इज 54 गाइस, शाहरुख में 2 56। फिर आपको पता है ना जंपिंग वाला रूल, भूल गए वो भी? चलो 57, फिर ये 14 40 चाहिए उतना बल। बेटा उधर पढ़ा था ना पीरियोडिक टेबल में कि देखो, हाँ बेटा, लेक्चर अब तक देखा नहीं है ना। अच्छा अच्छा, तो ये है ना, उधर मैंने अच्छे से समझाया है, तो एक बार देखेगा ना, देखिए नहीं समझेगा तो मैं समझा दूंगा बेटा। ओके सर। हाँ, ये 71 वापस इधर आके 9 की जगह है अभी, is going to be guys how much? 80, this 6 86, it's 288, Then फिर इधर again 14, फिर again sorry again jump 1, this is very good, what 89,
फिर इधर आए 14 भरे, कितना हुआ 103 आई गेस, राइट। इधर वापस गए, मीनिंग 9 भर दिए, रिमेनिंग 9 भर दिए तो 112 गाइस। हाँ, एवरीवन फास्ट। Yes, sir. Yes, sir. ये 88 था, एक भरा 89, पीछे गए, दैट इज कितना 14 भरे ना अपन, दैट इज 89 प्लस 14 बराबर है सर 103। 103 गाइस प्लस 9 112 112. 12। प्रियंका में 6, कितना भर के हुए 118. इलेक्ट्रॉन्स 118। Am I clear? Yes, इधर तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. अभी इधर इधर बेटा, एवरीवन इधर 118 के बाद मेरा क्वेश्चन ये था 119 के 119वां इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में फिल होगा 119th इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन 119th इलेक्ट्रॉन will be filled in which subshell? Anyone? Sir, 5G. 5G. Sir, S. 5, हाँ बोलो बोलो। 8S. Great. Harsh was right here. क्या आया है नया, बोलो भाई। मैं क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. मीन्स पीरियोडिक टेबल में 8th पीरियड आ चुकी है। देर आर राइट नाउ 7 पीरियड ना पीरियोडिक टेबल में, तो they come up with what 8th period started, 8th shell started. तो गाइस लाइफ में क्या बनना है, साइंटिस्ट बनना है सर, और नए एलिमेंट्स डिस्कवर करना है। तो गाइस आप लोग डिस्कवर करो एलिमेंट्स, मैं फिर वो एलिमेंट्स को बढ़ाऊंगा इधर, राइट। चलो तो ऑफ रूल गाइस, ऑफ रूल क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yeah. sir. ऑफ रूल गाइस फास्ट। Yes, sir. अरे भूलना है व्हाट इज ऑफ रूल। ऑफ रूल इज नथिंग बट Filling of electrons. rule designed for filling of electron in a Proper given subshell. Order. सबशेल। कौन से सबशेल के बाद कौन सा सबशेल भरना चाहिए वो हमें सिखाता है गाइस कौन, ऑफ बाउंड रूल। एम आई क्लियर गाइस एवरीवन? Yes, sir. ग्रेट। चलो तो नाउ गाइस गोइंग टुवर्ड्स Hund's rule. Now, Hund's rule, it's nothing but a rule designed for filling of an electron in a orbital. Now, guys, anyone? ये सपोज 2p सबशेल ऐसे गोल थोड़ी है, कैसे है वो Very 2p good. सबशेल कैसे है, कैसे गाइस? Spherical. डम्बल शेप है, राइट एवरीवन? मुझे बताइए इधर एवरीवन, क्या कि here electron how to fill inside it? हर एक पैर के डंबल में 1 इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा, सो वेरी गुड। हंस बोल रहा है कि हर एक में, वेरी गुड, सबसे पहले
this is a symbol of electron. And it up arrow means shows clockwise spinning. Guys, क्या बोलता है वो? clockwise spinning. Clockwise spinning, very good. So हर एक ऑर्बिटल कौन सा ऑर्बिटल गाइस? px, दिस इज px, ये कौन सा है? py, और ये कौन सा है? pz. Z sir. So क्या सिखाया उसने myth? That is fill all orbital first with single electron. क्या fill और orbital with guys? Fill or orbital with guys what? Single electron. Single electron. Then make it double or make it pad. Yes मतलब ये sir. उल्टा एरो मतलब क्या? Anti-clockwise. Anti-clock. Lovely. Anti-clock. Anti-clockwise. Then either फिर उसको pair पैड अप or- करने जाओ. पैड अप मतलब देखो अभी वो ऑर्बिटल में डबल इलेक्ट्रॉन मतलब पैड अप ऐसे. तो हंस रूल ने क्या बोला? कशिश, हंस रूल ने क्या बोला बेटा? क्या सिखाया? हाउ टू फिल इलेक्ट्रॉन्स. बोलो मानव, क्या सिखाया हंस ने? How to fill electron in an orbital. इन ऑर्बिटल. वेरी गुड. If there are p में 3 orbitals are there, तो p में 3 orbitals है तो पहले क्या करना है इधर? मेघ First single electron fill करना है. ग्रेट. पहले सब ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करना है बस. पहले सब ऑर्बिटल्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करना है. देन विल मेक इट पैड. Am I clear guys? Everyone? Nidhi, Brunal, am I clear beta? Prathamesh, Yes, sir. Purva. Great. So guys, here I am just writing सबशेल के अंदर बाद में ऑर्बिटल्स, हर एक में इलेक्ट्रॉन कैसे भरना है, दैट एकदम क्लियर हुआ है. ग्रेट. Am I clear? Now, अभी ये क्या है? बराबर. ये क्या है? 2p के ऑर्बिटल्स है. क्या है? ओए, P के orbitals. that is 2px, 2py and 2pz. Am I right everyone? Yes, sir. सपोज ये इलेक्ट्रॉन कहां पे है? सर सेकेंड शेल में है. और अच्छे से 2p सब शेल में है. और अच्छे से 2p सब शेल में 2px ऑर्बिटल में है. और अच्छे से, अरे सर वो क्लॉकवाइज स्पिनिंग कर रहा है.
ठीक है, तो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का आई रिक्वायर ऑलवेज 4 इंफॉर्मेशन। कौन से शेल में घूम रहा है वो, कौन से सब शेल में घूम रहा है वो, कौन से ऑर्बिटल में घूम रहा है वो, और कौन सा स्पिनिंग कर रहा है वो। इधर कैन यू श्रावणी प्लीज टेल क्या कौन इलेक्ट्रॉन का क्या चाहिए मुझे ऑलवेज बेटा। श्रावणी बेटा कैन यू प्लीज टेल इलेक्ट्रॉन का क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए इलेक्ट्रॉन का। आई रिक्वायर व्हाट बेटा, शेल, फिर इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल दैट इज 2p में घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है भाई बताओ, कौन से सब शेल में है, कौन से सब शेल में है। देन फिर ऑर्बिटल। 2p में भी 3 ऑर्बिटल्स है राइट, तो 2p के अंदर कौन से ऑर्बिटल में घूम रहा है, बराबर है। यस सर, बराबर। एंड फाइनली उसका स्पिनिंग क्या है। स्पिनिंग सर। ग्रेट, हमें क्लियर। स्नेहा बेटा, श्रुति, श्रावणी प्लीज स्पीक अप गाइस। अभी तो इतना टाइम हो गया, अभी तो फ्रैंकली बनो, थोड़ा थोड़ा ऐसे बोलेंगे आप लोग, आंसर देंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना बेटा। विथ द टाइम you have to become frankly, you have to ask doubts guys, don't be like reserved nature, shy nature, ये सब will be creating a gap between us. You have to be frank with all sirs, you have to ask doubts guys, जो भी प्रॉब्लम है आपको पूछना है सर को। Am I clear guys, everyone? Yes, sir. चलो Yes, sir. ओके, अभी ये ऑल इंफॉर्मेशन के लिए वी हैव डिजाइंड नंबर्स। ये सब इंफॉर्मेशन देने के लिए डिजाइन एक नंबर डिजाइन की है हम लोग ने, उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। तो which information I want electron का, which information I want electron का, which information I want electron का guys? Subshell Shell, subshell, Shell. orbital, and spin. and the सर spinning. शेल, सब शेल, ऑर्बिटल एंड स्पिनिंग। And the spinning. Orbitals and Spinning. spinning. तो Spinning. for information के लिए we have guys 4 kind of quantum numbers. Principal quantum number denoted by n tells about shell. Guys, azimuthal denoted by small n, small l, you guys, tells about the subshell of an electrons. फिर magnetic quantum number small m tells about orbital of an electron. And finally tells about spinning. That's it guys, am I clear everyone? Yes, sir. क्या we want Sir, हर एक 4 information of electron. इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, कौन से subshell, Subshell orbital, में and है, spin. कौन सा ऑर्बिटल में है, और क्या स्पिनिंग है उसका, राइट। Right, Yes, sir. sir. सो ये सब इंफॉर्मेशन के लिए वी हैव बेटा व्हाट, Quantum Quantum number. numbers. Four types of. 4 types of quantum numbers. Principal quantum number, it always tells about electron Shell. कौन से cells में है। यस सर, Azimuthal quantum number always tells about, सब शेल। Subshell. great। अभी magnetic quantum number always tells about, Orbitals. Orbital. great। And spin quantum number tells about the, स्पिनिंग। ठीक है। Spinning. अभी एक एक को जूम मतलब एक एक को फोकस करके पढ़ते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सर बोल तो दिया अभी आपने,
ठीक है ना, थोड़ा एक दो लाइन और बोल दूंगा अंदर, बराबर. लेट्स गाइस, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज n. तो भाई n की वैल्यू 1 लिखी किसी ने, इसका मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल, राइट. n की वैल्यू 5 लिखी, बोलो ना, इलेक्ट्रॉन इन Fifth shell. Shell. इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फिफ्थ शेल. n की वैल्यू 0 लिखी, नो इलेक्ट्रॉन. Absent. सर मजाक कर रहे हो यार, कोई जीरो नाम का शेल होता है क्या? सर यू No, आर sir. प्रोवाइडिंग अस व्हाट? बोले बोला Wrong Wrong information. information. wrong information. Yes. So here n's allowed value starts from 0 to infinity. मतलब infinity मत लेना, infinity से एक कम नंबर. infinity मतलब इलेक्ट्रॉन dropped out from the atom, बाहर निकल गया. infinity मतलब Electron dropped out from the atom. एटम से बाहर निकल गया. चलो Sir, So क्या बात है? हाँ, -1 लिखो ना. infinity -1. बोलो अब्दुल्ला, बोलो. सर अलाउड वैल्यू जीरो कैसे, मतलब जीरो तो रॉन्ग इन्फो दे रहा है ना, मतलब सॉरी, it starts from what? चलो, 1. तो 1 to infinity -1. जीरो शेल तो होता ही नहीं. वेरी गुड, बराबर है एवरीवन. Yes, sir. ठीक है. अभी ये और भी आप लिख सकते हैं ना भाई प्रिंस, थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक भाई. रेडियस फाइंड आउट करना, वो नील बोर ने फाइंड आउट किया था रेडियस, तो उसमें भी यूज किया था ये फॉर्मूला. कौन सा फॉर्मूला? n²/z पिकोमीटर, राइट. ये सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स गिनने में काम आता है. 2n², n बार बार n क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है वो तो काम में आता है, प्लस ये सब फॉर्मूला में भी काम आता है, राइट. Yes, sir. एंगुलर मोमेंटम क्या था फॉर्मूला? mvr इक्वल्स टू व्हाट? nh अपॉन 2 R. पाई. 2 n pi. यूज हुआ कि नहीं? n यूज हुआ कि नहीं? एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, एनर्जी -2.18 into 10⁻⁻18 into z² upon n², n n जूल Yes. पर एटम, राइट. एन बाकी सब जगह भी आता है काम में, ऐसा कहने का मतलब है. बट मेन काम उसका क्या है आर्सलन? मेन काम sir, shell पता करना. शेल पता करना. कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन्स? n की वैल्यू 2 मतलब Second shell में sir. सेकेंड शेल में. ग्रेट. सो दैट वाज वेरी इजी गाइस, वेरी गुड. गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज azimuthal azimuthal quantum number. That is guys what? That is Subshell. so it was L. for subshell, na? It's about subshell, yes. Just writing here tells about subshell. Great. So वंशिका जी, दिमाग में जा रहा है ना बेटा? वंशिका, स्नेहा, स्वाति, यशस्वी, प्लीज टेल अप Yes, sir. अभी कभी भी L की वैल्यू 0 देख के ही याद रखने का, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन S सबशेल. L की वैल्यू 1 देख के ही क्या समझने का?
Physically p subshell. L की वैल्यू 2, L की वैल्यू 3, फिर Electrons present in b subshell. Electrons present in f subshell. ग्रेट। आरती बैठ रहा है दिमाग में? यस सर। क्या बोलिए? L की वैल्यू 0 मतलब इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में। L की वैल्यू 5 मतलब, चलो 4 मतलब, जी सबशेल में। ग्रेट। समझ में आ रहा है कुछ अब्दुल्ला जी? Yes, sir. ओके, तो अभी ध्यान से, अगर ये मेरा डायग्राम, let me call Mr. Samyak, beta, are you there? Samyak, Pratmesh, यस सर। मेरा इलेक्ट्रॉन बेटा ये सेकेंड शेल में घूम रहा है, तो मैंने n की वैल्यू तो Yes. 2 लिख दी, बरोबर है? यस सर। यस सर। अभी मेरा इलेक्ट्रॉन 2p में घूम रहा है, 2p सबशेल। सर तो 6 मुझे इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, फाइन, 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो आप, बट मेरा ये वाला इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको? ये इलेक्ट्रॉन sir. कौन से शेल में, सेकेंड शेल में है? यस कहाँ सर। पे घूम रहा है? 2p में घूम रहा है। यस सर। 2p में घूम रहा है, तो L की वैल्यू क्या क्या लिखूं तो सामने वाले को समझेगा कि वो p में घूम रहा है, 2p में? सर एल की वैल्यू 6 आएगी ना? 1 sir. हाँ बेटा, 1 इधर देखो, 1 1 राइट। क्या बेटा देखो, p में अगर आपका इलेक्ट्रॉन p में घूम रहा है तो आपको क्या लिखना चाहिए? कौन सा नंबर लिखना चाहिए? कौन सा क्वांटम नंबर लिखना चाहिए? एजिमुथल One. क्वांटम नंबर के अंदर कौन सा नंबर? 1 मतलब बेटा क्या? So 1 equal to p. It denotes the electrons in p shell. Okay, great. So 1 indicates that electron in p subshell. Am I right, everyone? Yes, sir. यस सर। Okay. So इधर प्रथमेश जी L की वैल्यू 1 आएगी, समझ में आ रही बात? Yes sir. ओके, अभी बेटा प्रथमेश जी, अगर आपने n की वैल्यू 2 लिखी, बरोबर है? हाँ, Yes sir. क्या n मतलब n n की की वैल्यू वैल्यू 2 2 मतलब लिखी n की वैल्यू 2 एज लिखी, सबशेल। n की As वैल्यू subshell. 2 लिखी। ओके, क्या बोल रहा है? हाँ बेटा प्रथमेश, क्या बोले वापिस? सर एज शेल का डिनोट करता है n इक्वल टू 2। यार क्या बोल रहे हैं आप? एक मिनट रुकिए, ये देखो बेटा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा रमेश? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल यस क्वांटम सर। नंबर क्या सिखाएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में कितने हैं? हाँ, कितने हैं थोड़ी बताता है वो क्या बताता है प्रथमेश? कि आपका इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में घूम रहा है, बस इतना ही बता रहा है वो। क्या? यस, अपने शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है? प्रथमेश शांति, देखो शांत दिमाग से सोचो, मैं क्या बोल रहा हूँ उस पर फोकस करो। प्रथमेश, ये एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बाकी सबको जाने दो, बराबर? यस सर। अभी इसका ये इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में घूम रहा है?
ये इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में घूम रहा है वो डिनोट करने के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। क्या? वापस बोलो। वो इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में घूम रहा है वो डिनोट करने के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। हाँ, मतलब अगर मैंने n की वैल्यू 1 लिखी, मतलब वो इलेक्ट्रॉन पहले शेल में घूम रहा होगा। यस सर। अगर मैंने वो n की वैल्यू 5 लिखी तो फिफ्थ वो शेल। इलेक्ट्रॉन फिफ्थ शेल में घूम रहा होगा। अगर मैंने n की वैल्यू 0 लिखी तो देयर इज नो इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, देयर इज नो शेल्स, 0 शेल को होता ही नहीं है। मतलब आप रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मतलब इधर इधर मेरा इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में घूम रहा है बेटा। यस सर। इसके लिए मैंने n की वैल्यू 2 लिखी। बात समझे? यस सर। यस सर। ओके, चलो। अभी n की वैल्यू 2 लिखी, मतलब इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में घूम रहा है बेटा। वेरी गुड। अभी बेटा मैंने l की वैल्यू 1 क्यों लिखी? सर बिकॉज पी सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन है और ये डिनोट करता है कि L इक्वल टू 1 डिनोट्स इट इज इन पी शेल। वेरी गुड, चलो। तो मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन p सब शेल में घूम रहा था, इसके लिए हम लोग ने l की वैल्यू 1 लिखी। हमारा इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में घूम रहा था इसलिए L इक्वल टू 1 लिखा। हाँ, चलो गुड। अभी एक बात है प्रथमेश, नया स्लाइड में लिखता हूं, कोशिश करना गाइस प्लीज समझने की। किसी ने n की वैल्यू 2 लिखी, बराबर? एवरीवन, किसी ने क्या लिखा? n की वैल्यू N 2, इक्वल टू मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन सेकेंड शेल। सेकेंड शेल सर। बराबर। अभी सेकेंड शेल में कितने सब शेल्स है? 2। दो क्या? सर। 2s एंड सेकेंड शेल में 2 सब शेल। मतलब 2 ही सब शेल है, तो इधर इधर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता होगा या तो इधर रिवॉल्व होता होगा। क्या बोला मैंने? 2s पे होता होगा। सेकेंड शेल में देर आर ओनली व्हाट? 2 सब शेल गाइस। 2 सब शेल्स। सो तो इधर आइदर 2s इलेक्ट्रॉन, में होगा या तो 2p में होगा सर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। बराबर। अगर 2s में रिवॉल्व होगा तो l की वैल्यू क्या लिखेंगे? 0। देखो ना इधर, l की वैल्यू 0 मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं। सब शेल s सब और शेल और इधर में क्या? सर। कि अगर अगर p में होगा इलेक्ट्रॉन तो 1 l की वैल्यू 1 लिखेंगे, राइट? 1 1 हाँ सर। Am I right? So only these two are the permissible value. यस सर। अगर कोई l की वैल्यू -1 लिखेगा तो बोलेंगे ए उल्लू बना रहा है क्या, -1 थोड़ी वैल्यू होती है, बराबर कि नहीं? अगर कोई बराबर। ने इधर गाइस धन्यंता यस सर। सेकेंड शेल में l की वैल्यू 2 इज नॉट अलाउड, व्हाई? बिकॉज सेकेंड शेल में देर आर ओनली सर टू there are इलेक्ट्रॉन। only 2 subshells. यस सर 2 सबशेल्स। Second shell में there are only 2 सबशेल्स। 2s and 2p. यस सर। So electron either revolves in 2s or that और electron 2p। or revolves in 2p। 2p. So अगर 2s में रिवॉल्व कर रहा है तो l की वैल्यू क्या अलाउड है? 0। और अगर 2p में रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो क्या अलाउड है? 1। Am I right? यस सर। यस सर। Means l equals to 2.
L equals to 2 मतलब D में रिवॉल्व कर रहा है. सेकेंड शेल में D कैसे आएगा भाई? Yes, sir. Means that you are giving wrong information. Yes, sir. नहीं समझा. मतलब I can write this or I can write this. This two is only allowed. This is not allowed. This is not allowed. Why? Dhanendra, 2, 0. This is n, L. N is what, beta? N is 2. मतलब electron in second shell. Second shell. Yes, sir. And 0 मतलब in S सब shell में घूम रहा है. Shell. Yes, sir. हाँ, तो सेकेंड शेल में S है. हाँ, चलेगा, अलाउड है. इधर बोलो. 2, 1 देख के क्या बोलेंगे? Electron in second shell. Second shell. And in 1, 1 मतलब P subshell. P सब शेल में घूम रहा है. वेरी गुड. Yes, अलाउड sir. है. बट 2 -1, हाँ ठीक है, सेकेंड शेल. बट -1 करके कोई सब शेल है ही नहीं. नॉट अलाउड. रॉन्ग है ये. 2, 2 मतलब इलेक्ट्रॉन इन Second shell. second shell and again S 2. subshell is wrong. Yes. D again 2, 2 मतलब Sir, S Third subshell. D सबशेल के बारे में बोल दिया आपने. सेकंड में 2, 2 में D कहाँ पे है ही नहीं. नहीं. थर्ड में है D. तो ये 2, 2 is wrong. Yes. Am I clear? Yes, sir. Great. Ramsha beta, are you there? Yes, sir. बेटा धन्यंता ने जो समझाया वो एक बार वापस समझाइए. सर L equal to 2 नहीं लिख सकते और L equals to -1 नहीं लिख सकते क्योंकि वो there are only 2 subshells. सेकेंड शेल में. हाँ, yes, sir. बराबर है. And L equal to 0 is its permissible value. 0 and 1. Yes, sir. परमिसिबल वैल्यू है 0 and 1. बराबर है. तो रामशा बेटा और एक एग्जांपल लेके बात करता है. अगर n की वैल्यू 3, एक मिनट बेटा, एक ही मिनट. रामशा बेटा n की वैल्यू 3 है. Yes, sir. तो थर्ड शेल में कितने सब शेल्स है? 3. दैट इज 3s, 3p और 3p and 3d. तो इलेक्ट्रॉन 3s में घूमेगा तो L की वैल्यू क्या चलेगी बेटा? बता ना. 0. बराबर है. 3p में इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो L की वैल्यू क्या चलेगी? 1. बराबर. और 2. बराबर है बेटा. Yes, sir. ये तीन ही वैल्यू परमिसिबल वैल्यू है. अगर n Yes, की वैल्यू sir. किसी ने 3 डाले तो L की वैल्यू ये 3 में से ही डालनी चाहिए कोई भी एक. Yes, sir. कहाँ पे घूम रहा है? क्या बोला? Yes, sir. 3s, 3p और 3d तीन ही हो गए तो L की वैल्यू या तो 0 यूज कर सकते हैं या 1 या 2. अगर if we take value of n equal to 3, we have to choose any of these 3. और n इक्वल्स टू 3 के साथ वो लोग ने L इक्वल्स टू 3 भी डाल दिया. ऐसे लिख के दिया मुझे. तो मैं क्लियर कट बोल दूंगा ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का रॉन्ग एड्रेस है. क्यों रॉन्ग एड्रेस है? इसका मतलब क्या हुआ? 0, 1, 2. थर्ड शेल और 3 मतलब इधर बेटा L की वैल्यू 3 मतलब बेटा क्या? L की वैल्यू 3 मतलब कौन सा सब शेल? F. ग्रेट. सो इधर बेटा थर्ड शेल में F सब शेल पॉसिबल है D क्या? है. No, sir. E है. ये रॉन्ग हो गया, समझा? Yes, sir. 3, 2 मतलब Second shell. हाँ, ये शेल का तो ये नंबर है. Third shell. हाँ, और वैल्यू 2 है. थर्ड शेल. L की वैल्यू 2 है बेटा. हाँ, sorry. L की वैल्यू 2 मतलब It is present in P. हाँ. D. L की वैल्यू 2 मतलब D. D.
बात समझे रामशाह जी? यस सर। क्या 3,2 मतलब 3 उसकी थर्ड शेल की वैल्यू होती तो थर्ड शेल एंड एल इक्वल टू 2, सो फिर वो डी शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन थर्ड शेल एंड इट इज दैट डी शेल। डी सब शेल, एम आई राइट? यस सर। ग्रेट बेटा, वेरी गुड। पूछिए, अभी कोई पूछ रहा था, अब्दुल्ला जी पूछ रहे थे शायद। नहीं सर, खाली वो चार्ट देखना था एक बार, वो अच्छा। L = 1 2 वाला। ओके ओके ओके। तो बेटा रामशाह जी, कमिंग बैक टू यू वापस, सॉरी यस हियर सर। रामशाह जी, यस अभी सर। एन की वैल्यू के ऊपर एल की वैल्यू डिसाइड होती है। यस सर। एन की वैल्यू आगे 2 डाले थे, यस तो सर। एल एल की वैल्यू 0 और 1 अलाउड है। यस सर। एन की वैल्यू 3 डाले तो एल एल इक्वल की टू वैल्यू 2 तक अलाउड है। 0 1। तो क्या मैं एक जनरलाइज फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ इधर रामशाह जी, बार बार अपन को कंफ्यूजन ना हो इसके लिए। ड्रॉ कौन करेगा बार बार, राइट रामशाह जी? तो एल की Yes, sir. अलाउड वैल्यू बेटा क्या? Allowed value. 0 to n-1, मतलब 0 से नीचे आप नहीं डाल सकते कोई भी हाँ। वैल्यू, बराबर है? Yes, sir. Yes, और sir. n-1 3 -1 2. Yes, sir. ये अलाउड Understood. है बस। ग्रेट। तो Yes, रामशाह sir. बेटा, लास्ट क्वेश्चन टू यू, Yes. अगर मेरा इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में घूम रहा है तो थर्ड So- तक लास्ट वाले स्टार्ट कहां से होगा? 0 ओके, 0 to 3. 4 -1, दैट इज 3। Am I clear? That is 0 to 3 मतलब 0 1 2 3 Yes, चार sir. वैल्यू बताती है कि भाई देयर आर 4 शेल्स में 4 सब शेल्स आर देयर, Yes, sir. बराबर है? 0 Yes, डालोगे 4,0 मतलब 4s, 4,1 मतलब 4P. 4P. 4,2 मतलब गाइस 4D. फास्ट, वेरी गुड। और ये 4,3 मतलब 4F. 4F। 4f। तो अभी तक मैंने जो समझाया फटाक से, लेट मी कॉल टू स्वाति बेटा, फटाक से समझा पाएंगे क्या समझाया मैंने? Yes, sir. अब अभी तक हम लोग सबसे पहले भी स्टार्टेड विद ऑफ बाउ रूल। ऑफ बाउ रूल में हम लोग ने सीखा क्या कि भाई इलेक्ट्रॉन कैसे फील होते हैं वो। कैसे फील होता है इन गिवन सबशेल। फिर हंस रूल में गिवन हंस रूल ऑर्बिटल में है, हम लोग को पता चला कि पहले ऑर्बिटल को फिल करेंगे सिंगल इलेक्ट्रॉन और फिर हाँ, उसको पैड करेंगे। 2p के अंदर 3 ऑर्बिटल है, तो पहले सबको एक एक से भरेंगे और फिर उसको पैक करेंगे। वेरी गुड। फिर हम लोग ने क्वांटम नंबर पढ़ना चालू किए। इधर बेटा Yes, sir. क्वांटम नंबर आर स्मॉल नंबर्स, quantum numbers are the small numbers, right, Yes, sir. which tells the information about electron. Shell, subshell. Okay, सबसे पहले अपन ने पढ़े प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय n, n की वैल्यू 1 से इंफिनिटी -1 तक अलाउड है। n की वैल्यू Yes, 1 sir. लिखा तो n की वैल्यू 1 लिखा तो वो फर्स्ट शेल में है। घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। यस। एजिमुथल क्वांटम नंबर प्लीज गाइस एवरीवन, l की वैल्यू 0 लिखी तो s सबशेल में। Present in S subshell. L की वैल्यू 1 मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन p, L की वैल्यू 2 मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन p, लाइक दैट, राइट? यस सर। एल की Yes, वैल्यू sir. 0 सर, सो प्रेजेंट फर्स्ट वाला क्वांटम। हाँ, सो इधर इधर क्लियर इतना मीट? L की वैल्यू 0 Yes, मतलब इलेक्ट्रॉन इन सर s सबशेल। प्रिंसिपल क्वांटम। क्या बोल रहे हैं हम लोग? एजिमुथल क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं मीट। एजिमुथल क्वांटम नंबर मतलब सबशेल के बारे में बात हो रही है। सर आपने कहा ना एल की वैल्यू 0 होगी, तो सर कौन से में होगा? तो मैं वो बोल रहा था कौन से में होगा? सर, फर्स्ट प्रिंसिपल। अरे बेटा, L की वैल्यू 0 मतलब इलेक्ट्रॉन s सबशेल में घूम रहा है।
एल की वैल्यू 1 मतलब देखो उधर क्या लिखा है स्लाइड में, पढ़ो। एल की वैल्यू 0 मतलब प्रेजेंट इन एस सबशेल। एल की वैल्यू 1 मतलब, ये पहले फिट करो दिमाग में। किसी हाँ ने भी सर, एल की वैल्यू 2 डाली मतलब इलेक्ट्रॉन, बोलो। प्रेजेंट इन डी सबशेल। एल की वैल्यू 3 डाली तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, एफ एफ सर। अभी 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 समझो इधर में। एन की वैल्यू मैंने 2 डाली, एन एन क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हाँ बेटा, एक मिनट मीत को बोलने दो। ए मीत फटाफट, एन की वैल्यू 2 मतलब सर एस सबशेल में। अरे एन 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 मतलब क्या बेटा? एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हाँ सर, एन एन मतलब क्या एन बेटा? का एन मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हाँ सर, एन एन क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है। हाँ, तो एन की वैल्यू 2 मतलब बेटा सर इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में। बेटा सबशेल के बारे में एल बताएगा, एल क्या? इलेक्ट्रॉन के बारे में सर एन नहीं बताएगा, एल बताएगा। अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ मित, समझो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, और एजीमुथल क्वांटम नंबर दैट इज स्मॉल एल की वैल्यूज बताएगी इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में सबशेल है। में, ओके सर। एन एन सर प्रिंसिपल क्वांटम एन बताएगा कौन से शेल में है, एंड सर एजीमुथल क्वांटम जो एल से डिनोट होता है वो बताएगा कि कौन से सबशेल में। हाँ, अभी ओके वेरी गुड, परफेक्ट। इधर एन की वैल्यू 2 मतलब सर सेकेंड शेल में। इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में, राइट। हाँ अभी सर। सेकेंड शेल में 2 ही सबशेल है। हाँ सर। एक मिनट सामने सर रुकिए। तो दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन हाँ, मतलब इलेक्ट्रॉन या तो 2s में घूमता होगा, या तो इलेक्ट्रॉन 2p में सर 2s में घूमता होगा, तो एल की वैल्यू 0 इज अलाउड। 0, यस सर। और 2p मतलब में होगा तो L की value। किसी ने आपको 2,0 लिख के भेजा, तो आप उसका मतलब क्या समझोगे? 2,0 मतलब इलेक्ट्रॉन 2, आगे आगे शेल शेल की बात होती है। 2 मतलब इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में घूम रहा है, 0 मतलब एस सब शेल में घूम रहा है, मतलब 2s में यस घूम रहा है वो। 2s में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है। ओके, अभी किसी ने आपको यस 2,1 लिख के भेजा, अगर क्या लिख के भेजा 2,1 सर, तो सर मतलब p p p में सर रिवॉल्व हो रहा है। अच्छे से ना बेटा, 2p में रिवॉल्व हो रहा है। 2p में सर सबशेल रिवॉल्व, 2p सबशेल में रिवॉल्व हो रहा वेरी गुड। 2p है। हाँ क्यों? सर, आगे का 2 क्या बता रहा है, कौन सा शेल? कौन सा शेल, और सर 1 वन बता रहा है कि वो p में घूम रहा L है, की राइट। वैल्यू। यस अभी सेकेंड शेल में d तो होता ही नहीं है, खाली s और p होता है। हाँ सर। इसके लिए l की वैल्यू 2 इज नॉट अलाउड। यस सर, इधर 0 और 1। बराबर। इधर इधर क्या हुआ बताओ मीत, क्या n की वैल्यू क्या लिखी है बेटा? सर 3। बोलो 3, मतलब थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। थर्ड शेल में कितने सबशेल है मीत? सर 3, s p 3s और 3p और 3d। 3d, बराबर है। तो हियर बेटा 3s में घूम रहा होगा तो l की वैल्यू 0 इज अलाउड। 3p में अगर घूम रहा होगा तो l की वैल्यू तो 1 इज L की अलाउड, वैल्यू 1 इज अलाउड। और 3d में घूम रहा होगा तो l की वैल्यू 2 इज अलाउड, राइट। यस सर। 3 सबशेल है तो 3 ही वैल्यू अलाउड होनी चाहिए l की। l इक्वल्स टू यस 3 अलाउड होना ही नहीं चाहिए। l हाँ इक्वल्स सर, टू 3 मतलब f, थर्ड शेल में f कहां से आया भाई? नहीं समझा? समझा सर। तो सर 3
इसके लिए इधर शॉर्टकट बनाया हमने कि L की वैल्यू 0 से n-1 तक अलाउड है। क्या यस सर, क्या शॉर्टकट बनाया है सर। हम्म, n की वैल्यू 0 से n-1 तक है। n-1 तक है, वेरी गुड। यस इधर फोर्थ शेल क्या है बेटा? ये सर, 4, n Fourth is है। 4। यस Fourth। सर, 4। फोर्थ शेल। तो बेटा इधर फोर्थ शेल में इधर क्या, फोर्थ शेल में कितने सब शेल है? सर 4। तो L की अलाउड वैल्यू विल बी 3। 0 to n-1 बेटा। यस सर, 0 to हाँ, 4 0 to minus 1, n-1। that is 0 That to is 3 is allowed, then 0 1 2 yes, 3, these 4 values only allowed। मतलब 4 हाँ के साथ कॉम्बिनेशन में 4,0 4,1 4,2 4,3 दिस यू कैन राइट। अगर आपने 4,0 लिखा मिड तो सर, एस सब शेल में 4s। 4s। यस सर, अगर आपने 4,1 लिखा तो 4p सर। 4,2 4D। सर 4d और 4,3 मतलब 4f। f से Yes. अपना f सब शेल में। ओके। हाँ सर, रुशिता, वंशिका, भाग्यश्री, एम आई क्लियर Thank you, sir. एवरीवन? स्नेहा, वेलकम। Yes, sir. ओके ग्रेट, चलो क्लियर सर। ग्रेट। सो लेट मी आस्क क्वेश्चन फटाक से। मेरा इलेक्ट्रॉन 5,5 में घूम रहा है, इसका मतलब अब्दुल्ला जी सब 5G। फिफ्थ शेल में, सर हाँ बोलो। एक सेकंड सर। हाँ सर 5H होगा। बेटा सीधा आंसर नहीं देने का, चेक करने का। ये L की Okay. अलाउड वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा? तो 0 to 4, 0 to 0 n to minus 4 होना 1। चाहिए सर, सिर्फ 0 to 4 होना चाहिए। I लिखा तो सीधा सीधा बोलने का क्या, बराबर बेटा अब्दुल्ला जी? क्यों? आप देखिए हाँ 5 बराबर, शेल में, समझ गए। 5 शेल में क्या अब्दुल्ला जी बोलो अभी? 5s, 5p, बोलो बोलो, 5d, 5f और 5g, ये 5G। 5 सब शेल है, बोलो ना। यस सर। 5,0 लिखा मतलब 5s में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। हाँ, 5S। 5,1 लिखा मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है? 5,2 लिखा 5P में मतलब घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन 5d में घूम रहा है। बोलो हम्म। 5,3 मतलब हाँ सर 5G। 5f। 5,4 लिखा तो 5S हाँ, में 5,4 लिखा 5G। तो 5g, मतलब 5 कुछ होता ही नहीं है, राइट? 5G। नहीं समझे? यस सर। 5 करके कुछ होता ही 5G। नहीं है। एम आई क्लियर एवरीवन? समझा सर। यस। यस और नो? यस। यस सर, समझे। यस सर। भाई सब लोग लिखो उधर, कोई मेरे को समझेगा। यस नो कुछ भी क्लियर करो भाई। चलो अभी गोइंग टूवर्ड्स, देखते हैं कौन ये समझ पाता है। लास्ट स्टेज है गाइस। स्पिन क्वांटम नंबर तो एकदम इजी है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओनली समझना है बस गाइस। चलो सबसे पहले आरती, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में है? टेल्स अबाउट Orbitals. Orbital. इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल, राइट? ऑर्बिटल। यस और नो? Yes, sir. ओके। अभी आरती, एस सबशेल 2 ही इलेक्ट्रॉन
दो इलेक्ट्रॉन मतलब ओनली वन ऑर्बिटल। क्या बोला मैंने आरती बेटा? दो इलेक्ट्रॉन मतलब ओनली वन ऑर्बिटल। एस सब शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन ओनली वन मतलब ऑर्बिटल में एक ही होते हैं, ऑर्बिटल। की ऑर्बिटल। तो इसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 दिया गया है। इसको क्या दिया गया है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0। 0 बराबर है। तो एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल है और उसको m इक्वल्स टू 0 करके लिखना है। कैन यू रिपीट? एस सबशेल में दो ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही ऑर्बिटल है, तो m इज इक्वल्स टू 0 लेना है। मतलब s ऑर्बिटल अगर फिक्स हुआ, क्या s ऑर्बिटल मतलब फिक्स हुआ, तो m की अलाउड वैल्यू एक ही होगी 0 बस। अब उसके अलावा कुछ भी लिखा मतलब रॉन्ग इंफॉर्मेशन। ओके सर। बोलो। एस सबशेल अगर फिक्स्ड उन लोग देंगे तो m की वैल्यू 0 ही होगी, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है ना, एक ही नंबर चाहिए बस। ठीक है। यस सर। वंशिका बेटा क्या आप प्लीज रिपीट। अगर किसी ने बोल दिया मेरा इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में है, किसी ने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में है। इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में, तो सर उसका एक ही ऑर्बिटल होगा और उसका एक सर ही m ऑर्बिटल होगा बस। फिक्स्ड है जो है 0। अगर सर कोई और इन्फो दी होगी तो वो रॉन्ग इन्फो। यस सर। चलो अगर एस वो दिया होगा पी या एफ तो रॉन्ग होगा वो। हाँ, अभी इधर देखो, पी सब शेल एवरीवन, पी सब शेल में गाइस क्या क्या है? 3 ऑर्बिटल है पी सब शेल में। पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिटल पी एक्स पी वाई और पी जेड। यू नो, मैं अभी पढ़ा, सुबह ही पढ़ा, पी एक्स पी वाई पी जेड 3 ही ऑर्बिटल है, तो उसके 3 ही नंबर चाहिए सर। कौन सा कौन सा? -1 0 +1, 3 ही नंबर दिए मैंने। कौन से? बोलो ना। -1 0, 3 ही नंबर अलाउड है बस। -1 0 +1, उसके अलावा कोई नंबर अलाउड नहीं है। अयान बेटा समझ रहा है? अब्दुल्ला, अयान, प्रथमेश, एम आई क्लियर? आर्सलन? यस सर। बोलो क्या? अयान, अगर P सब शेल है, ट्राई टू स्पीक आउट गाइस, P सब शेल है तो 6 इलेक्ट्रॉन अलाउड है। लो, P सब शेल है मतलब 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 ही ऑर्बिटल, px py pz। -1 लिखा मतलब इलेक्ट्रॉन px में घूम रहा है। क्या? -1 लिखा तो इलेक्ट्रॉन px में घूम रहे हैं। +1 लिखा तो इलेक्ट्रॉन py में घूम रहा है। py। 0 लिखा तो pz में घूम रहा है। अरे प्रॉब्लम। सर हाँ हाँ, सर खाली ये -1 वाला एक बार एक्सप्लेन कर दो ना वापस। अरे वापस टेंशन नहीं, देखो ध्यान से। किसी ने बोल दिया कि मेरा इलेक्ट्रॉन है ना p ऑर्बिटल में घूम रहा है। मेरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? पी ऑर्बिटल ई में। ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल में। तो फिर हम लोग को क्यूरियोसिटी हो गया, यार उसमें 3 ऑर्बिटल है, p में px py और pz कहाँ घूम रहा होगा? बराबर, हाँ कि ना? यस सर। 3 ऑर्बिटल है तो 3 नंबर दिए है उसके लिए। कौन सा कौन सा? -1 तो px -1 0 और +1। -1 मतलब px इलेक्ट्रॉन px में घूम रहा है, +1 मतलब
पी वाई, जीरो मतलब पी जेड। लवली, ओके सर। क्लियर है एवरीवन? सर क्लियर Yes, है। sir. ओके। अगर 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 डिंग 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 डी सब शेल, सो डी सब शेल में तो 10-10 इलेक्ट्रॉन है। बाप रे, 10-10 इलेक्ट्रॉन के लिए बोलो बोलो। पांच सो पांच 5 ऑर्बिटल है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, ठीक है, डी एक्स XZ, जेड। एक्स स्क्वायर वाई। ये याद आ रहा है एवरीवन? थोड़ा यस याद सर, करो। याद आ रहा है। एक्स वाई मतलब एक्स वाई प्लेन पे 4 क्वाड्रेंट पे 4 लॉब्स, 2 डंबल। वाई जेड प्लेन पे 4 क्वाड्रेंट, वाई जेड प्लेन पे 4 क्वाड्रेंट, 2 डंबल, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है उधर। डी जेड स्क्वायर मतलब जेड एक्सिस पे रिपल्शन बढ़ गया तो रिंग भी बनाएगा गाइस। डी एक्सजेड प्लेन पे 4 क्वाड्रेंट, 2 डंबल। फिर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स और वाई एक्सिस पे। अरे तो ये सब पता है सर। अभी 5 नंबर दे दो, खत्म करो लेक्चर यार। -2 -1 0 +1 +2 गाइस, 5 नंबर समझ में आ रहे हैं? हाँ कि ना? हाँ सर। ओके। और अगर एफ सब शेल है तो 7 जल्दी। orbitals. ओ वेरी गुड स्वाति जी। 7 ऑर्बिटल्स, नाम नहीं पता है भाई, जबरदस्त नाम है, आउट ऑफ स्कोप है, बट नंबर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. ग्रेट। एवरीवन कितना समझा पहले? पूर्वा जी फटफट बोलोगे एकदम। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पूर्वा जी किसके लिए आता है, जल्दी बोलो। Sir, it tells about the orbitals. So, like अभी एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसका 0 ही हो सकता है। पी सब शेल में अकॉर्डिंग टू द डम्बल, मतलब वो थ्री रीजन्स के हिसाब से, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड के हिसाब से, अगर -1 दिया रहेगा तो पी एक्स रीजन में होगा, +1 दिया रहेगा तो पी वाई रीजन में होगा, एंड 0 ये दिया होगा तो वो पी जेड रीजन में होगा। ग्रेट। और डी में there are 5 orbitals, -2 to +2 are the magnetic quantum number are allowed, and similarly F subshell में there are 7 orbitals, so -3 to +3 magnetic quantum numbers are allowed. Am I right? Yes. So अगर पूर्वा जी शॉर्टकट L की वैल्यू 0 बराबर, तो M की वैल्यू भी 0 अलाउड, बस। ओके सर। L की वैल्यू 0 मतलब क्या बेटा? कौन सा सबशेल है वो? सर एस सबशेल में आएगा। Am I right? यस सर। पूर्वा जी L की वैल्यू 1 मतलब? पी सबशेल। मतलब M की वैल्यू अलाउड वैल्यू इज -1 to हाँ -1 0 -1 to +1। ग्रेट। पूर्वा जी फटफट। एल की वैल्यू डी सबशेल, तो डी सबशेल की वैल्यू -3 to +3 मैग्नेटिक। हाँ पूर्वा जी। Oh sorry sir, हाँ -2 to There are only five regions. Yes. Yeah. That is dxy, dyz, dz square, dxz, and this dx square y square. Yes sir. L की वैल्यू 3. F subshell -3 magnetic quantum number will be -3 to +3. Guys, in short, everywhere you can see that M की allowed value
is माइनस में minus, भी उतने नंबर तक है और प्लस में भी उतने नंबर तक है। हाँ दैट इज शॉर्टकट में साम्यक जी m की अलाउड वैल्यू इज -L to +L। टू प्लस एल क्या m की वैल्यू इज -L to +L। अगर इधर 0 रखा तो ओनली वन नंबर कम्स, सर मतलब जीरो L को इक्वल माइनस भी नहीं होता प्लस भी नहीं होता, प्लस माइनस भी वन नहीं तो प्लस होता, वन ही इसके रहेगा। लिए एक ही नंबर 0 बस, तो m की वैल्यू एक की वैल्यू अलाउड 0। अगर इधर 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 साम्यक जी ये 1 रखूं मैं इधर, ये सर तो भी जीरो ही आएगा। -2 -1 to +1 -1 0 +1 3 3 वैल्यूज। 3 वैल्यू। नहीं समझा। समझा सर समझा। क्या m की अलाउड वैल्यू विल बी माइनस -1 0 +1। ओके आरती जी क्लियर है बेटा? L की वैल्यू 2 मतलब इधर -2 to +2, दैट इज -2 से +2, दिस 5 वैल्यूज। मैं क्लियर एवरीवन? आरती, स्वाति, यस सर। सब लोग ओके? यस सर। चलो भाई इधर रुकते हैं अपन, इसको वापस एक बार रिवाइज करके विल वाइंड अप दिस सेशन, ठीक है? चलो ओके बाय सर। गाइस, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर, बाय Thank you, सर। sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय Bye, बेटा, sir. Thank you. बाय सर। बाय बेटा, बाय 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 सर। सर, थैंक यू सर। माय प्लेजर, टेक केयर बेटा, बाय Bye, sir. Thank you, sir. बाय बाय बाय, टेक केयर बेटा। Sir, हाँ बोलिए today I बेटा। myself I didn't, sir, understood कि क्या पता क्या हो गया आज, उल्टा क्यों बोल रहा हूँ। अरे कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन Sir, sorry होता है for कभी that. कभी। अरे नहीं नॉट एट ऑल, अपने रॉन्ग ही आ रहा था सर, I don't know. नॉट एट ऑल बेटा, डोंट वरी। Okay, sir. Thank you, sir. Take बाय care. बाय Bye, sir. सेम टू यू बेटा, टेक केयर। बोलिए बाय बेटा, भाग्यश्री, स्वाति बोलिए बेटा। सर बोर्ड के अभी जो टेस्ट होगा उसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का आपने सिखाया नहीं, तो वो कैंसल्ड आउट है क्या? वो इलेक्ट्रो पोटेंशियल का है ना, दैट पूरा चैप्टर है 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करके, सो उसको नहीं स्टडी तो करना है उसमें ना फिलहाल के लिए? हाँ वो एकदम थोड़ा सा दे के छोड़ दिया है वो लोग ने, एंड वो सिखाना चालू किया तो फिर मजा नहीं आएगा, मतलब पूरा चैप्टर है ना बेटा वो, हाँ हाँ। तो इट विल बी क्रिएटिंग कंफ्यूजन अननेसेसरीली, वो लोग ने फालतू में डाला है। ओके सर। सर वही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th में चैप्टर है पूरा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें पोटेंशियल ही पढ़ना है पूरा। ओके सर There is चलेगा। मैं no पढ़ use रही थी of तो that फिर all. वो समझ ही नहीं आ रहा था, मैं बोली काल से आ नहीं गया नहीं, वो निग्लेक्ट करो, वो समझने के लिए ना बहुत सारी चीज पहले समझनी पड़ेगी, ओके सर ऑक्सीडेशन, चलेगा। रिडक्शन, पहले सब बहुत है उसमें। ठीक है सर, वो थैंक लोग यू ने सर। इतना सा डाल, वेलकम बेटा, बाय, बाय सर, टेक केयर। टेक केयर बेटा।